باطل نے جب جب بدلے گئے تگمر، آیا گئے تب تب میری زباں پر، باطل نے جب جب بدلے گئے تگمر، آیا گئے تب تب میری زباں پر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ ہلو، کیوں فون کاٹ کے بھاگ گئے جناب؟ فون کاٹ نہیں دیے، فون کٹ گیا جناب۔ یہ بتائیے، سنیں سنن ابو داؤد کے حدیث پیش کیا، زندگی کی ثبوت پیش کیا اور صحیح حدیث پیش کیا جس کا انکار پہلے ایک منٹ سنے تو اختر بھائی پلیز، کیوں ایسے کر رہے ہو؟ آرام سے بات کرو، ایک منٹ تم بولو گے، ایک منٹ میں بولوں گا۔ جی جی، ریکارڈنگ آئے گی، لوگ سنیں گے۔ اس حدیث کو مانتے ہو یا نہیں؟ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب بولوں گا تم بیچ میں نہیں بولو۔ جی جی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نبی زندہ ہوتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کا فرمان ہے، اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف جلد نمبر اول صفحہ نمبر 118 حدیث نمبر 1637۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر ہوا جو سرخ ٹیلے کے قریب ہے، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 حدیث نمبر 6157۔ سنن نسائی شریف حدیث نمبر 1633 میں موجود ہے۔ آپ بتائیے، حدیث تو کہہ رہی ہے کہ زندہ، اور بہت سارے حدیث میں لا دوں گا جس کا آپ انکار کرتے ہو، اور مر کے مٹی میں ملنے کی بات جیسے کہتے ہیں آپ لوگ کا عقیدہ مر گئے۔ بولنے دو، ہاں بولیے، یہ حدیث کا آپ انکار کریں گے؟ بھیا قبر کے پجاری بھائی بولنے تو پھر قبر کے پجاری کریں، کون کتاب میں پڑھے آپ؟ میں ثابت کر رہا ہوں، سنو ثابت کیجئے جناب۔ رکیے جناب، پلیز جناب، پلیز بولیے۔ سامعین کرام غور کریں گے، اختر نجامی بھائی نے کہا کہ نبی زندہ ہوتے ہیں اپنے قبروں میں، جی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ارے سنے تو بھائی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کہہ رہی ہے۔ ہاں سنے تو بھائی، پہلے سنے تو بھائی۔ دیکھیے سامعین کرام غور کریں گے کہ سب سے پہلی بات میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ آیت پڑھیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ شہید زندہ ہیں، تو انہوں نے آیت پڑھی کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائے، قتل کیے جائے۔ تو میں نے کہا کہ قتل ہونے کے بعد آدمی مرے گا کہ جو زندہ ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ قتل ہونے کے بعد آدمی کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا، اور جو ہے زندہ ہو جائے گا۔ زندہ کیسے ہوگا؟ آپ بتانا، اپنے ٹرمز میں بولنا، اپنی ٹرمز میں آپ بول دینا، اپنے ٹرمز میں آپ بولنا، میرے ٹرمز میں مت بولو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کلیئرفائی کر دینا نا، لوگ سن لیں گے، کلیئرفائی کر دینا۔ جی دیکھیے جناب، سب سے پہلی بات ہے کہ اگر شہید زندہ ہوتا ہے، سامعین کرام غور کریں گے، تو ایک آدمی کو مان لی قتل کیا گیا، تو قتل کیا گیا تو وہ آدمی کھڑا ہو کے زندہ ہو جائے گا کیا؟ سب سے پہلی بات پوچھنے والی بات یہ ہوگی کہ کھڑا ہو جائے گا، بولے گا میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، ہے نا؟ اور یہ لوگ کیا کرے گا؟ بریلوی لوگ ان کو اٹھا پٹا کر کے لے جا کے دفن کر دے گا زندہ ہو کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہا قتل کیے جائے۔ ابھی نے قتل کرنے پر آدمی زندہ ہو جاتا ہے، تو زندہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ جو کھڑا ہو گیا ہوگا وہاں پر نہیں۔ تو اب یہ کیا کلیئرفائی کریں گے؟ ذرا اس کے بارے میں اپنے بتا دیں کہ ایک آدمی جو جن کو قتل کیا گیا وہ کیا کرے گا قتل ہونے کے بعد؟ وہ مان لی گردن اس کو اڑا دیا گیا، تو پھر وہ جو ہے نا کرے گا کیا وہ آدمی؟ بتائیں جناب من، آپ نے کہا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ مردہ ہی ہوتے ہیں، مرے ہوئے مر جاتے ہیں، ٹھیک؟ قرآن کی آیتوں میں انکار آپ کر رہے ہو کہ اللہ رب العزت جب کہہ رہا ہے تو آپ کو قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہہ دیے کہ وہ مردہ ہیں۔ میں نے حدیث کا حوالہ دیا، وہ زندہ ہیں بلکہ اس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ میں حدیث کا حوالہ دیا صحیح مسلم کا، نسائی کا، کہ وہ زندہ ہیں اور قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، آپ اسے مردہ کہہ رہے ہیں۔ تو سنیے حدیث، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام حرام کر دیے ہیں کہ زمین ان کو کھاتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 398، سنن نسائی شریف حدیث صفحہ نمبر 203، صفحہ نمبر 204 جلد نمبر اول حدیث نمبر 1375۔ سنن ابن ماجہ شریف یہی حدیث کو بیان کیا، حدیث نمبر 1636 اور 1085۔ ارے بولنے دے، تو آپ مردہ مان رہے ہو تو مردہ ثابت کریں۔ بولیے سامعین کرام، میں نے ان سے ایک ہی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، گردن اڑ گیا آدمی کا، تو کیا وہ آدمی کھڑا ہو گیا میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں اس طرح سے بولا کیا؟ یا نہیں بولا تو پھر وہ آدمی ہے کیا؟ اس کی باڈی کیا ہے؟ وہ آدمی کا روح کیا ہے؟ اور وہ جو ہے پھر ایک آدمی جو غازی بن کر کے آیا ہے اس کا باڈی کا کیا حال ہے، اس کا روح کا کیا حال ہے؟
ये दोनों को क्लियरिफाई करने का छोड़ करके ये वहां भाग रहे हैं जहां मसला दूसरा आता है। वहां पर भी हम आएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी, जिसमें मिट्टी खाती है कि नहीं खाती है, और मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, क्या था मेराज का वाकया, क्या क्या वहां पर अल्लाह ताला ने किया, वो मसला बाद में आएगा। पहले जो अल्लाह ताला ने जो लफ्ज यूज किया कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए, मारे जाए, गर्दन उड़ गया वो आदमी का, उसको जो है चाकू लग गया, गोली लग गया, तो से उसका बदन छलनी हो गया, तो उस आदमी का हाल क्या, वो क्या खड़ा होकर बोलेगा मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। इसको ये क्लियरिफाई करने के छोड़ के कहां भाग रहे हैं, फिर कैसे भागेंगे, सुनिए आप बताएं। जनाब आप अपने अकल के घोड़े से बात ना करें, सामीईन किराम सुने गौर से, ये अपने अकल के घोड़े से कोई हवाला नहीं, कोई हदीस और कुरान नहीं, जब बल्कि कुरान मजीद कह रहा है कि उन्हें मुर्दा मत कहो और ये मुर्दा कर रहे हैं। यानी अहले हदीस के हुसैन मुनाजिर है, जो अपने आप को मुनाजिर कहलाता है, लेकिन हदीस और कुरान से भी पैदल महसूस हो रहे हैं, और कुरान की आयत का सरी इनकार करके अपने ईमान के साफ जाहिर कर दिया कि हम बेईमान हैं, अल्लाह के किताब को हम नहीं मानते हैं, हदीस को नहीं मानते हैं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा साबित कर रहे हो, मैं कसीरा हदीस पेश कर सकता हूँ। हदीस सुने, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला भाई मेरे वो जवाब दो ना, पहले आप जो पूछ रहा हूं मैं आपको। जी वो जवाब देने का, हदीस पढ़ने का मेरे पास 1 लाख हदीस है, पढ़ दूं क्या दिन भर लेकर? आपने मुर्दा कहा है तो मुर्दा के एक हदीस पेश करें जनाब, मैं वही चाहता हूं। जनाब सुने तो जनाब, सबसे पहली बात कि आप अभी तक इस बात को डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि एक आदमी का गर्दन उड़ गया, वो आदमी क्या करेगा, वहां पर खड़ा होकर के मैं जिंदा हूं का नारा लगाएगा, या आप बोलेंगे नहीं ये जिंदा है, ये जिंदा है? कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं आप? हवाला से बात कीजिए, किताबों से, अपने अक्ल के घोड़े ना। अल्लाह ताला बोल रहा है ना कि वो कत्ल किए जाए, बोले हैं ना, कत्ल किए जाए, तो बोले अल्लाह ताला ही बोल रहा है कि वो मुर्दा मत कहो, तुम मुर्दा कह रहे हो ना। अरे तो मुर्दा मत कहो तो जिंदा हो गया ना, वहां पर वो जिंदा है कहा करके, वो जिंदा है, वो जिंदा है। तो एक आदमी जो खुद कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बात करता होगा, मैं कुरान बात कर रहा हूँ, अपनी अकल से फिर बोल रहे हैं यार, फिर अकल वाली बात कर रहे हो तो अकल से बात ना करें जनाब, आप गुमराह हो रहे हैं। कुरान की अल्लाह के फरमान को मजाक बना रहे हो, वो दुनिया में जिंदा है कि नहीं? नहीं, कुरान के मजाक ना उड़ा, दुनिया में जिंदा है कि नहीं है वो? लाहौल वला कुव्वत, दुनिया में आखिरत में हमेशा जिंदा है, दुनिया में भी जिंदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए सामने कराम, देखिए बदमाशी देखिए और बेहुदगी देखिए, लाहौल वला कुव्वत। तुमने कुरान की आयत का मजाक बनाया रहा है कि दुनिया में से अल्लाह ताला बोल रहा है कत्ल किए गए, मारे गए, और ये मारे गए, दुनिया में मत कहो, तुम मुर्दा कह रहे हो ना, मुर्दा मत तो दुनिया में जिंदा है ना, बात करता होगा तुमसे ना, दुनिया में जिंदा है या मुर्दा? अब तुम तो पहले मुर्दा ही कह रहे हो, कुरान की आयत का मजाक बना करके तुमने अपने आप के ईमान को गारत कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा कह रहा था, हदीस सुनाए तो अल्लाह खामोश हो गए। अल्लाह कहता है वला किल्ला तशउरून, और तुम्हें इसका शऊर नहीं है। तुम्हारे जैसा तुम्हारे लिए ही है वो, तुम्हारे शऊर नहीं है। और ये बदबख्त कहता है कि नहीं दुनिया में जिंदा है। अरे बेवकूफ, तुमने कुरान के मजाक बढ़ाया, कुरान कह रहा मत कहो मुर्दा, तुम मुर्दा कहते हो ना। अच्छा सुनो, गाजी आदमी जब आएगा, अरे सुनो ना, गाजी मुर्दा कैसे कहा कुरान में? दुनिया के लिए अल्लाह बोल रहा ना कत्ल किए गए, तुम मुर्दा कैसे कहे जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत मना किया है? अच्छा आदमी अल्लाह की बात का इनकार किया ना, अल्लाह की बातों का इनकार किए ना। अरे आदमी इनकार करने वाला काफिर है, तुम तौबा करो, मैं कह रहा हूं तो तौबा भी नहीं किया। तो इनकार तो पूरी बरेलवियत कर रही है। तुम इनकार किए हो अभी शरीफ तौर पर, अल्लाह मना कर रहा है कि मत कहो, और तुम कह रहा मैं कहूंगा। कहाँ मुर्दा कह रहे हो ना अभी? अल्लाह कहा जिंदा दुनिया में कहो, ऐसा कहाँ बोला है? अरे अल्लाह को जिंदा दुनिया में है, हाँ? जब अल्लाह ही बोल दिया मुर्दा मत कहो, तुम मुर्दा क्यों बोल रहे हो? जिंदा दुनिया में कहाँ? बताओ मेरे को, मुर्दा बोलने का हक अधिकार कौन दिया है? दुनिया में अल्लाह बोला है तुमसे, दिखाओ कुरान की आयत पेश करो। क्या चीज? हाँ कर रहा हूँ, रुको। अल्लाह ताला के रुको, जो अल्लाह के रास्ते में, पूरी आयत सुनो, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए, मारे जाए, उन्हें मुर्दा गुमान मत करो, बल्कि हम उन्हें रिस्क देते हैं, और तुम्हें इसका शऊर नहीं है। ठीक है ना? बोले हाँ ठीक है। कोई डाउट आपको? ये ठीक पढ़े, लेकिन तुम मुर्दा कह रहे हो। नहीं डाउट है कोई आपको? पहले ये बताओ। कहते भी हो, पहले डाउट है आपको? इनकार भी करते हो। मैंने जो आयत पढ़ी कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं, मारे जाएं, उन्हें मुर्दा गुमान मत करो, वो जिंदा है अपने रब के पास, और हम उन्हें रिस्क देते हैं, और वला किल्ला तशउरून, और तुम्हें इसका शऊर नहीं है। पक्का यही है ना? जी यही है ना?
तो अल्लाह ताला उनको रिस्क देता है, खाना देता है, पानी देता है, सब कुछ देता है ना? जी जी, तमाम रिस्क देता है ना, देता है ना, देता है ना, देता है ना। अरे अब आप मेरे को एक शहीद ला करके दिखाओ आप ऐसा जिसको आपके सामने अल्लाह ताला खाना पानी दे रहा है। तुम्हारे जैसा चप्पड़गंजू एक शहीद गा करके दिखाओ, यानी अल्लाह पर एतराज तुम्हारा कर रहे हो ना? आप जा करके उस शहीद को सुना रहे हो कि नहीं सुन रहे? अल्लाह पर एतराज कर रहे हो तुम, आपका अल्लाह के कुरान की आयतों का मजाक बना रहे हो। तौबा करोगे? क्या दुनिया में? दुनिया में तो पूरी बरेलवियत कब्र की पुजारी बन गए। कब्र की पूजा दुनिया के लिए, तुम मोमिनों के लिए, मोमिन के लिए कहा मोमिन मान गए, मुर्दा नहीं करते। लेकिन तुम काफिर हो कि कुरान क्या मना कर रहा है, तुम नहीं मान रहे हो। हम मुर्दा कहेंगे तो मुर्दा कहो तुम, अल्लाह से जिंदा कहेंगे, जिंदा कहेंगे तो एक बाप तो सही, जिंदा नहीं कहोगे तुम्हारे सामने ना। इतना झापड़ मारूंगा, कुरान कह रहा है जिंदा कर रहा है। अरे जिंदा कह मुर्दा कर रहे हो, तुम्हारे पास जिंदा है। तुम्हारे अक्ल के घोड़े फिर दौड़ा रहे हैं। इतना झापड़ मार, मैं कह रहा हूँ गैर मुकल्लिद साहब, हुसैन साहब, गैर मुकल्लिद साहब, सीधा तौबा करोगे या नहीं? तौबा करोगे या नहीं? क्यों मारोगे? कुरान की आयत के तौबा करोगे नहीं? मजाक बना के रख दिया। देखो तौबा करो, वाला खेला मत करो। देखिए जनाब, तुम अपने ये गंद जबान बोल रहे हो, कितनी गंदगी तुम कुरान के इनकार कर रहे हो, कुरान का मजाक बना रहे हो। तुमको तो सामने रहता तो इतना जूता मारता, होश ठिकाने में मारता। अरे बेवकूफ आदमी सामने बैठे कुरान की आयत का मजाक बनाता है। बेवकूफ कैसे हिम्मत करता है गैर मुकल्लिद साहब? अहमद रजा को कैसे तुम लोग हिम्मत करते हो अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को खड़ा करके अकल के हिसाब से अकीदा रखते हो? अस्तगफिरुल्लाह। अरे अल्लाह ताला कहता है कि जो अल्लाह के बंदे सीधा तौबा करोगे या नहीं? क्या तौबा? तौबा करो, कुरान का मजाक की आयत को तौबा करो। जिंदा वो कल, ये तो बताओ मेरे को। पहले तौबा करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, जिंदा है, पूरी बरेलवियत को करनी होगी कि वो कब्र की पुजारी है। करोगे या नहीं? कुरान की बात मानोगे या तुम्हारी अक्ल की बात मानोगे? दो ऑप्शन तुमको दे रहा हूं। कब्र को पूजने पे तुम तौबा करोगे? हिंदू से बदतर कौम वाले, हिंदू से बदतर कौम तो पूरी बरेलवियत के पागल मुशरिकीने मक्का खाली करके अल्लाह को पुकारते। पहले ये कुरान की आयत के पुजारी क्या करते हैं कि तरजीह दोगे, अपनी अक्ल को तरजीह दोगे, अहमद रजा क्या बोला जानते हो? मानोगे कुरान की आयत को मानोगे है कि मेरे कुरान के साथ निकला या अपने अकल के घोड़े शैतान के साथ जाओगे? अहमद रजा बोलता है कि मेरे मुंह से जब भी निकला या गौसी निकला या अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो या गौसे आजम अल मदद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इस्तेआनत करने की जो ताकत दिया है, उसका अल्लाह के वलियों से, जो बुखारी शरीफ में खुद मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहता है उनको, हदीसों में आता है, उसका आंख बन जाता है, उसका कान बन जाता है, जिससे वो सुनते हैं, वो करते हैं। किसका कान बन जाता है? अल्लाह के वलियों का। तुमने कुरान की आयत का मजाक बनाया, पहले तुम तौबा करते हो या नहीं? जिंदा में तुम मुर्दा कहे हो ना? जिंदा में कि मुर्दा में? जिंदे में भी, मुर्दे में भी, जिंदे बादल मिसाल। अस्तगफिरुल्लाह, हम तो अल्लाह के वलियों को मुर्दा मानते ही नहीं, पहले नंबर। दूसरी बात, अल्लाह के नेक सालिहीन बंदे को जिंदा मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के खाक जिया करते हैं। तुम हदीस का भी इनकार, तुम हदीस का हुए नहीं। तुम्हारे अब्बा मरेंगे तो मुर्दा होके मरेंगे। मुस्लिम शरीफ में भी हदीस में सुनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिंदा, और ये हदीस का रहा है मुर्दा। कुरान का रहा है मत कहो, और ये हदीस का रहा है मुर्दा। कुरान के लड़ रहा है कौन? सामने कराम, गौर से सुनिए इस मर्दों हदीस की बातें को, कि इसने मुर्दा कह रहा है शहीदों को। ऐसा धर्म गलीज धर्म, मक्का से बदतर भागना मत, ये भागना नहीं। और तूने कहा था इन्नका ला तुस्मिउल मौता, कहा था ना इन्नका ला तुस्मिउल मौता, इसका जवाब भी सुन लो, भागना नहीं। बताओ 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 बताओ। हाँ, नबी आप मुर्दे को नहीं सुना सकते। कहाँ है ये आयत? एक सेकंड, ऐ नबी आप मुर्दे को नहीं सुना सकते। ये आयत जनाब सूरह फातिर में है गालिबन। इतना झापड़ मारता कौन मुनासिर बना दिया तुम लोगों को यार? मेरे पास कुरान सामने थोड़ी सी, देखिए आयत नंबर 80 सूरह नमल है। सूरह नमल, सूरह नंबर 27 पारा नंबर 20 मौजूद है। बताओ ऐ नबी आप मुर्दे को नहीं सुना सकते? ऐ नबी इतना अपनी अकल से तर्जमा कर रहा है। इन्नका बेशक, काफ माने आप होता है, ला तुस्मिउ उल, कहेंगे मुर्दों को नहीं सुना सकते, यही कर रहे हो ना? ये बताओ तो यहाँ नबी मुखातिब, यहाँ अल्लाह मुखातिब किससे? और आयत नंबर 22 सूरह फातिर में, सूरा नंबर 35, अरे अल्लाह पारा नंबर 22,
दोनों आयत पढ़ दिया मैं, है ना। मुखातिब है अल्लाह? आप उनको नहीं सुना सकते जो खबरों में मारूंगा अभी, यही नहीं कर रहा है, इतना पिछवाड़े डंडा मारूंगा अभी होश। अरे बेवकूफ, जब जाहिल हो तुम तो दो आयत में पढ़ दिया, पिछवाड़े डंडा मारूंगा। सुनो गौर से सुनो, कुरान की आयत पढ़, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, शैतान भागेगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, सूरह नमल आयत नंबर 80, और एक आयत वमा अंता बिमुस्मिउन मन फिल कुबूर, और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में है। यही खबीर पेश कर रहा है। तो इन दोनों आयत से मालूम हुआ कि मुर्दे नहीं सुनते, ये दलील खबीस पेश कर रहा है। इसलिए कि अंबिया उलिया बुजुर्गान दीन की इस्तेआनत के लिए पुकारना बेसूद फायदा बता रहा है ये बदबख्त, लेकिन इसका सही तफसीर सुनो, सही तफसीर सुनो, तफसीर इन्ना रब्बका यक़ज़ी बैनहुम बिहुक्मिही व हुवल अज़ीज़ुल अलीम फतवक्कल अलल्लाहि इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउल सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन वमा अंता बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून। पूरी आयत में पढ़ दिया सूरतुन नमल के, है ना, 78, 79, 80 और तर्जुमा करो। अय महबूब बेशक तुम्हारा रब, सुन लो तर्जुमा सुन लो, अय महबूब, अय रसूल, अय महबूब बेशक तुम्हारा रब उनके दरमियान। तुम बोला कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ। सुनिए 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 जनाब, गलत नहीं पढ़, सुन लो पहले, हंसो नहीं शैतान की जैसा। बेशक तुम्हारा रब उनके दरमियान अपने हुक्म से फैसला फरमाएगा, ठीक, और वही गालिब जानने वाला है। तो आप अल्लाह पर भरोसा रखिए, बेशक आप वाज़े हक हैं। कुफ्फार मक्का, यहां पर कौन है? कुफ्फार मक्का के से मुखातब। बेशक आप कोई पुकार ना मुर्दों को सुना सकते हैं और ना ही बहरों को जब वो आपसे पीठ फेर कर जा रहे हो। कुरान की आयत क्या है? तो आप ये कह रहे हो, याद रखना कुरान की इस आयत को, अभी इतना पिछवाड़े डंडा पड़ेगा तो होश भुला जाओगे। सुनो पहले, बोलो। जब वो पीठ फेर कर जा रहे हैं, बहरे पीठ फेर कर जा रहे हैं, बेशक आप पुकार ना मुर्दों को सुना सकते हो। किसको मुर्दा कर रहा है? काफिर को कर रहा है। तुम्हारे बहरा तुम्हारे जैसा काफिर, और उसको बहरा भी कर रहा है, और ना ही बहरों को। उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत काफिरों को क्या कर रहा है? बहरा का मुर्दा और बहरा कर रहा है काफिरों को, जो पीठ फेर कर जाते हैं, जैसा आप पीठ का फेर के जा रहे हो काफिर बन करके, है ना। मतलब बहरा नहीं, पीठ फेर करके जा रहे हैं, मतलब बहरा नहीं सुनता है ना, बहरा और दोनों मुर्दा भी है, मुर्दा भी नहीं सुनता। वला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउल सुम्मा दुआ, दोनों है, यानी बहरा भी और मुर्दा। किसको कह रहा है? काफिर और मुश्रिक को कह रहा है कि अल्लाह किसको कह रहा है? मतलब बोलो जनाब, बोल, किसको कह रहा है? मैं पूछ रहा हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत। मुर्दा से मुराद काफिर हो गए। जी मुर्दा भी कह रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत काफिरों को भी कह रहा है, यानी अल्लाह ताला मुर्दा से तस्बीह दे रहा है, काफिरों को तस्बीह दे रहा है। वही देखिएगा, इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जबकि पीठ फेर करके वो जाते हैं। कौन जाता है पीठ फेर करके? अरे सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सुनो ना भाई, सुनो, तुम आयत का मजाक बनाए हो ना, मजाक। सुनो, मुश्रिक तुम्हारे जैसा मुश्रिक है ना, पूरी तुम सुनो, गैर मुकल्लिद जो मुश्रिक है ना, वो पीठ फेर करके जा रहे हैं, जैसा कुरान की आयत का मजाक बनाए, तो वो आप पीठ फेर कर जा रहे हो। और ना ही आप अंधों को, आगे कह रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत, ना अंधों को, वमा अंता बिहादिल उम्मी अन दलालतिहिम, और उनके अंधों को, जबकि वो आप पीठ फेर करके जा रहे हो, और ना ही आप अंधों को गुमराही से बगैर इज़्निल्लाह हिदायत दे सकते हैं। आप तो उन्हीं को सुना सकते हैं जो आपकी दावत से हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। किसको सुनाए मैं? अंदाजी समझोगे, इतना पिछवाड़े डंडा मारूंगा ना, अभी होश भुला जाओगे। और अल-मुमिन हमारी आयतों पर जो ईमान रखते हैं उसको सुना सकते हैं। तो गैर मुकल्लिदीन काफिर हुए, मुश्रिक हुए, कुरान की आयत का मजाक बना रहा है बेवकूफ गधे। अरे गधे,
मुशिक, काफिर, काफिर, मुशिक काफिर। अरे पागल आदमी, पागल नहीं, कुरान की आयत का तर्जमा मैं सुना दिया तो पीठ फेर करके जो जा रहे थे मुर्दे और बहरे और काफिरों को नहीं सुना सकते, लेकिन हमारी आयतों को ईमान रखने वाले उसको सुना सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून, मुसलमानों को सुना सकते हैं, तुम गैर मुकल्लिदीन काफिर मुशरिक को पीठ फेर के जाने वाले क्या है? बोलिए, काफिर है। कुरान का मजाक बनाने वाला क्या है? बोलिए, कुरान का मजाक बनाने वाला क्या है जनाब?